Dear students, in last video what we have done, we have done the 6 question from the your exercise. Okay, now I am going to explain the another questions and I will provide the solution of that also, but you have to see the video to understand all the you can say all the formulas and all the reason behind the question. Okay, so your next question, we have done the 7 questions. Now 6 question completely. I am going to explain today the question number 7th here. In the 7th question you have asked, define valency by taking example of silicon and oxygen. Okay, so valency. Okay, define explain about the valency of, or you can say define valency by taking example of silicon and oxygen. Students, silicon and oxygen. Firstly you have to know the atomic number of silicon, that is 14, and oxygen 8. Okay, in this question you have asked that valency, define the valency. Valency, you know the students, the number of electrons lose or gain by an atom to get the stability or to get the electronic configuration like the inert gases. Got it? कोई भी एटम क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी दूसरे एटम से क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन ले ले या उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लेता या देता है वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. मोस्ट जनरली सोडियम का एग्जाम्पल दिया जाता है. सोडियम में देखना, इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2. सेकंड में अपन कितने करेंगे, 8. इन द थर्ड ऑर्बिट यू कैन फिल द 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इज रिमेनिंग देयर. मीन्स टू कंप्लीट द थर्ड शेल, इट्स ए के शेल, एल शेल, एम शेल. अब थर्ड शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट या तो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू बोरबेरी स्कीम, दैट इज द 2n². और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो ऑक्टेव रूल में दिया गया है कि लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं तो उसको स्टेबल मान लिया जाएगा. तो एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. मीन्स इट नीड 7 मोर इलेक्ट्रॉन टू गेट ए इनर्ट गैसेज लाइक कॉन्फिग्रेशन. लाइक अगर इसको 7 और मिल जाते हैं तो इसका नंबर टोटल कितना हो जाता है, 18. और 18 पे क्या आती है, आर्गन आती है. लेकिन कब, जब वो 7 इलेक्ट्रॉन ले. उससे बेटर क्या है, इट लूज द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट. 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर दे, निकाल दे. ओके, बाय लूजिंग it get the electronic configuration 2 and 8. Only 2 shells are there and the second cell which is complete. In the second cell कितने होने चाहिए, 2n², 2 into second cell. n means number of shell, 2. 2 square means 2 into 4 is equal to 8. It should be 8 electron in the second shell, and here by losing the 1 electron it get the inert shell that is filled with 8 electron. So what you can say it get the configuration like the inert gas, that is the neon. Neon कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे. और ये इसके पास कितने बचते हैं, 10 ऑब्वियसली. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके जैसा हो गया, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा. बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव चार्ज आयंस, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. व्हाट इट. तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जितने लेता है देता है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी. तो सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिट, so it is known as you can say its valency is 1, positive. Okay, positive negative बतानी हो, if it lose the electron number of electron then the valency will be positive, and if gain the electron means negative charge gained by an atom, so the valency will be negative here. Got it? Okay, now see, in this question you have asked about the valency of silicon and oxygen. तो वैलेंसी हमें समझ में आ गई. अब हम बात करते हैं सिलिकॉन की. सो डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इन डिफरेंट शेल. फर्स्ट शेल यू कैन पुट द 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, कितने लिख सकते हो अपन, 2 लिख सकते हैं अपन, 2 रख सकते हैं इसके अंदर, मैक्सिमम 2. इन सेकेंड शेल यू कैन पुट द 8 इलेक्ट्रॉन. ओके, 2 and 8, 10 are there. How many are left, 4 are
left in silicon. Silicon में कितने बच गए? 4 in the last orbit. What it can do? ये it can lose or gain the 4 equal electron. ये अगर inert gases के जैसा, if silicon take the 4 more electron, then it get the electronic configuration like 2 8 8, which is equal to 8 and 16 to argon. That is a inert gas. Okay. If it loses these electrons, because 4 है इसके पास में, तो equality है इसके अंदर, है ना, possibility to lose or gain is of electron is equal in that atom, so it can gain or lose the electron, so valency will be positive or negative. तो ये क्या करेगा, ले भी सकता है. अगर ये लूज कर दे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दिस नियरेस्ट गैस नियॉन. सो इट कैन लूज और गेन द 4 इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इसकी क्या होगी, 4 हो गई. वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. और हम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भी वो कितने हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 हैं, और वो ले या दे भी कितने सकता है, 4 ही दे सकता है. तो वैलेंसी भी क्या होगी इसकी, 4. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 and valency also 4 here. Now see the oxygen. Distribute the electron. In a oxygen first orbit you can put the 2, and in second orbit total 8 is there, 6 are remaining there. Means in last orbit how many electrons it contain, it have the 6 electron in the second orbit or second cell Kl. ओके, एल शेल के अंदर पूछ लिया जाए तो मैं तो बता सकते हो कि एल एम एन में डिवाइड किया गया है इनको. तो इसके अंदर अपने पास कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, 6. बट टू गेट द इनर्ट गैसेज लाइक कॉन्फ़िगरेशन इट नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन. 6 निकालने से बेटर क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो इट गेन द 2 मोर इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 and 8. Understood? So now it becomes like a neon, that is the inert gas. By taking 2 electron it convert into negative ion. So how many valency is 2 here, and the charge of valency is negative here. So -2. Valency of oxygen is -2. Or number you have asked, just you can write 4 and 2 are the valency of silicon and oxygen. Understood? I hope you understood, because we have done this topic in chapter also. Now next, the question number 9, which is given, 7 we have done. Now 8th question, explain with example atomic number. Atomic number, the number of electron or proton in an atom, which is represented by capital Z. Number of electrons or proton, because we all know that in atom the neutral atom have the equal number of proton and electron, and so because of that it become the neutral. किसी भी atom के अंदर electron और proton का number क्या रहता है, हमेशा equal रहता है. So it have the equal number of it is represented by the capital Z here. Got it? Next you have asked mass number. Mass number represented by capital A. This is the number of proton in a nucleus of an atom and neutron. Okay. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों का सम जो होता है वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है उसका. सो इट इज नोन एज द मास नंबर. टू रिप्रेजेंट इन एटम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास को हम कैसे, एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पे, और मास नंबर को हम ऊपर लिखते हैं. अगर हमारे पास क्या है, सोडियम, तो इसका एटॉमिक नंबर Z11 यहाँ लिखा जाएगा, और मास यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ या यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द मास नंबर. नाउ आइसोटोप्स एंड आइसोबार. आइसोटोप which we have done in the chapter na, isotope which have a same atomic number in same atomic number and different mass number.
different mass number. Example, you have carbon 6, 12 कार्बन 6, 13 कार्बन. तो ये कार्बन के जो सैंपल हैं ये क्या है, इनके आइसोटोप्स हैं. इसके अलावा तुम क्या देख सकते हो, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3 प्रोटोनियम ड्यूटेरियम टाइटेरियम इनको बोला जाता है. तो ये क्या कहलाता है, इनके आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर. ओके, तो ये ऊपर क्या है मास नंबर, नीचे क्या है एटॉमिक नंबर. सो यू कैन डिफाइन इट. नाउ अनदर यू हैव आस्क्ड आइसोबार. इन आइसोबार इन अ डिफरेंट एटम्स, एटम क्या होंगे हमारे पास, डिफरेंट होंगे. तो डिफरेंट एटम में क्या होंगे, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे. ऑब्वियसली नंबर एटम्स आर डिफरेंट देयर, सो